you all. Today, we all have gathered here for awareness session on entrepreneurship. Today we have Mr. Atipriya Mangas. He is a Business Blaster coach and global advisory member in Punjabi Chamber in Commerce. He has extensively worked in all the facets of management with specialization in the fields of leadership development, organizational behavior and employee engagement. And we also have among Dr. Harmeet Singh, who is working as Assistant Professor and Deputy Director IPR Cell at City University. He got his bachelor's and master's degree in computer application. I feel honored that I was given this opportunity to speak about you both. Once again, we welcome you all from the core of our heart. Now, I request Mr. Atipriya to come to advise and guide the students. Please, sir. With the mic. Hello. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sorry for keeping you wait for so long, and sorry for the technical glitch that you had to face. But welcome to this session. So before we start with this session, I would just like to ask, which class is sitting over here? Arts and commerce. Okay. So do you know what this session is all about? Okay. So today we are organizing Entrepreneurship Awareness Program, and this we are doing in collaboration with Startup Punjab. Right. Now we'll go through certain slides, and we'll be having certain activities also for you. But before we actually proceed further, I have my colleague with me, Dr. Harmeet, who is an expert in patent, and Ms. Apurva, along with the support of Tangri sir. So we are over here to guide you about the entrepreneurship and how you can be innovative. So for this particularly, I would like to thank the management of the entire school for letting us give this opportunity so that we can interact with each other. Now, before we actually begin with this session, do you guys know that what entrepreneurship is actually all about, or who is an entrepreneur? Do you guys have an idea about it? Kisi ko pata? Okay, let's do one thing. We'll keep this session interactive. Okay. So let's start interacting with each other. You don't need to feel shy about anything. And yes, if you feel that something you are not able to understand, or if you feel that you are getting bored or something, please do let us know, because we have many fun elements with us. And we are pretty much sure that at the end of the session, you guys will love the session, and you guys will actually learn something out of it. So okay, so before we actually begin with it, I would like to tell you, Himanshu, lights off kar do. Ek light off kar do. Okay, so I hope that the screen is visible to everyone. Yes, sir. All right. So see, these are the learning outcomes that we are going to cover in the session. The session is going to be a bit long, so please bear with us for that. But yes, it's going to be fun and interactive for you. So we are going to understand about the entrepreneurship. We are going to understand what is the startup ecosystem in India. Then we'll understand about the innovation, and we'll understand what is the support system which government is providing to the India. Now, I asked you before the beginning of the session that do you guys know who is an entrepreneur, or what is an entrepreneurship? Does anyone know about it? You guys are comfortable in English? Yes. Okay. You can either reply in English, Hindi, Punjabi. उसके अलावा कोई language आती है वो मुझे नहीं आती, sorry. But yes, please try to answer this. Does anyone know who is an entrepreneur?
this DPIIT has come up with its own definition of startup. Why? Because it's very important to define a startup, because that startup is an entity registered in India. Number second, the annual turnover should not exceed 25 crores, right? And the third one is that Dr. Satish Kumar ji, Vice Chancellor, City University, Shri Rakesh Pathak ji, Functional Manager, District Industry Centers, Department of Industry and Commerce, Punjab Government, Shri Navdeep Singh ji, Deputy CEO, District Employment Bureau and Enterprises, Ludhiana, Madam Mandeep Kaur ji, CEO, Simba Quash, Village Tangla, District Amritsar, Shri Jitendra Singh ji, Managing Director, Indigo Power Tools, Ludhiana, Madam Anupama Rani ji, Assistant Director, Ministry of MSME, Government of India, Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Development and Facilitation Office, Ludhiana, Shri Ati Priya ji, Director Planning and Development, Shri Majid Misgar ji, Deputy Director Learning and Development, Ms. Sarul Kausal, Assistant Professor, and other professors and faculty members of City University, and dear students, first of all, I welcome to all of you on the behalf of Ministry of MSME, Government of India, Department of MSME and Development and Facilitation Office, Ludhiana. Friends, today's seminar on entrepreneurship awareness. First of all, I tell you कि इसकी हमें क्या आवश्यकता हुई। इस प्रोग्राम को यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जो कि इतने डिपार्टमेंट यहां पर आए हैं, क्या इसकी आवश्यकता हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। देन एमएसएमई डीएफओ क्या है डिपार्टमेंट, और एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है। आप किसको एमएसएमई कहेंगे अगर आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है। देन रोल एंड फंक्शंस ऑफ एमएसएमई डीएफओ इन डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, various schemes like incubation and various financial schemes, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस प्रोग्राम का एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। प्लीज स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, यू आर वेरी लकी कि इस तरह का प्रोग्राम आपको सिटी यूनिवर्सिटी की ओर से यहां पर कराया जा रहा है। तो इसको आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है
क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि बहुत सारी आवाजें बीच में से आ रही हैं। प्लीज मेरी सबसे पहला रिक्वेस्ट यह है कि प्लीज आप इसको पेशेंसली और इसको आप सीरियसली अगर समझेंगे तो यह आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जो आज आपको डिस्कस किया जाएगा इसमें वो शायद आपको पैसे खर्च करने के बाद भी और टाइम खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आप एक चीज खर्च रहे हैं, वो क्या है? जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे होंगे बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन आप उस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का एम क्यों रखा गया। आपको मालूम है कि हमें एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जॉब सबको नहीं मिल पाती हैं। और जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, या हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, वो डे बाई डे एज पर आवर नीड उनको एफिलिएशन मिल रही है, क्योंकि वो हमारी नीड है। एजुकेशन इज मस्ट, तो हमें एजुकेशन की जरूरत है, उसके लिए हम एजुकेट हो रहे हैं, बट जॉब नहीं मिल पाती। और हम जब एडमिशन लेते हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मैनेजमेंट कॉलेज में, तो हम ये सोच करके लेते हैं कि हमको जॉब मिल जाएगी। अगर कहीं हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिल जाएगी, गवर्नमेंट में नहीं मिली तो हमें किसी प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज में मिल जाएगी। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में भी नहीं मिली तो किसी दूसरी कंपनी में भी, अपनी जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें मिल जाएगी। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं सिनेरियो कि इसमें जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो भारत सरकार ने यह देखा कि जॉब हम सबको नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी जनरेशन है, बॉयज और गर्ल्स जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, उनको कैसे हमने एम्प्लॉयमेंट देना है। तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च की जिससे कि आप अपना कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें और उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाले आप बन सकें। आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सकें। वो जॉब क्रिएटर कब बनेंगे? जब आप अपना कोई भी एंटरप्राइजेस या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहे आप कितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी से, कितने भी बड़े कॉलेज से आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। कारण क्या है? क्यों नहीं कर पाते? कि उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज नहीं होती है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और वो कैसे सक्सेस होता है, क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम का मेन पर्पस यही है कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक नॉट ओनली MSME DFO, नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ MSME, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपको एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने में, एंटरप्रेन्योर बनने में आपको हेल्प करते हैं। तो उसके लिए सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे यहां पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एंड एंटरप्राइजेस से भी ऑफिसर यहां पर आए हुए हैं। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर भी यहां पर आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने में या एंटरप्रेन्योर बनने में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं,
प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी, उन प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया था मैडम मनदीप कौर जी। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं, उनके बायोग्राफी में बताएंगे, मैडम बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा, शी इज टॉपर ऑफ LPU और उन्होंने बीइंग ए वुमेन एक एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश किया है, IT कंपनी एज ए सिम्बा क्वार्ज के नाम से विलेज के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा मोर देन 125 कैंडिडेट्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट वहां पर प्रोवाइड कराया हुआ है। तो वो कैसे कराया हुआ है उसके बारे में वो खुद ही मैडम एक्सप्लेन करेंगे आपको। उनसे रिक्वेस्ट किया था, वो यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, कोई भी काम किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, मैडम तो LPU के टॉपर हैं, लेकिन आज हमारे बीच में श्री जितेंद्र सिंह जी भी यहां पर आए हुए हैं। वो भी आपको बताएंगे कि उनका एज एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसी रही, कैसे वो यहां तक पहुंचे हैं और क्या अभी वो कर रहे हैं, वो भी आपको यहां पर इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने आज यहां पर एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के एक्सपीरियंसेस भी वो आपको मिलेंगे, साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको कैसे हेल्प करता है वो भी आज आपको यहां पर मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो यू आर लकी, मैं इसलिए आपको ये लकी वर्ड बोला था। ये सारे ऑफिसर्स कभी भी आपको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते हैं। अगर आप अपना टाइम और मनी स्पेंड करके जाएंगे आप कहीं, तो पर्टिकुलर एक ऑफिसर से ही मिलने जाएंगे, जो कि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से नहीं मिल सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अब डिपार्टमेंट के बारे में। ये MSME डिपार्टमेंट क्या है, तो पर्पस हमारा ये था प्रोग्राम का, और डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, नाम तो देखने से लगता है कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, पर कई बार हमको भी लोग MSME कहकर ही बुला लेते हैं कि तो ये कुंदन लाल जी फ्रॉम MSME, नॉट फ्रॉम MSME। MSME आप बनेंगे, यू आर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, यू आर प्रोस्पेक्टिव MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME का डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1956 में जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो देखा गया कि हमारे कंट्री की डेवलपमेंट किससे हो सकती, तो एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री, दो चीजों को मेनली लिया गया था। तो उस समय जब 1956 में ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया, तो इसमें हर ट्रेड के इंजीनियर्स को अपॉइंट किया गया, जिससे कि हर ट्रेड की इंडस्ट्री को डेवलप कराया जा सके, और नाम दिया गया था डिपार्टमेंट का SIDO, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लघु उद्योग विकास संगठन। और जो हमारे फील्ड के ऑफिस थे, जैसा कि हमारा यहाँ पर लुधियाने में है, उसका नाम दिया गया था SISI स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, लघु उद्योग सेवा संस्थान। तो ये लघु उद्योगों के लिए काम करता था। तो लघु उद्योग किसको आप कहेंगे, उद्योग किसको कहेंगे, आप अपनी भाषा में किसको उद्योग कहेंगे, किसको इंडस्ट्री कहेंगे? इंडस्ट्री के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। किसको इंडस्ट्री आप कहेंगे? जिसमें किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम कोई प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मींस उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। बट ये देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो हमारी आज की जनरेशन है, उसके लिए सर्विस सेक्टर का भी बहुत अच्छा स्कोप है सर्विस सेक्टर में। तो उसको कैसे इंक्लूड किया जाए, ये हमारी जो मिनिस्ट्री का नाम था उस समय SSI था, मिनिस्ट्री ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसको कैसे इंक्लूड किया जाए, तो आई टेल यू कि 2 अक्टूबर 2006 में एक एक्ट लाया गया, MSME एक्ट, और उस एक्ट को पार्लियामेंट में पास कराया गया। जब पार्लियामेंट में पास हो गया, तो डिपार्टमेंट का नाम बदल करके इसको MSME इंडस्ट्री से इसको एंटरप्राइजेज कर दिया, और इसको MSME इसको कैटेगराइज कर दिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और जो हमारे फील्ड के ऑफिस थे सर, उनका नाम दिया गया था MSME DI, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। लेकिन ये अभी रिसेंटली 30 जून 2022 को ही चेंज करके इसका नाम MSME DFO किया गया है।
डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस। फैसिलिटेट पहले भी करते थे, लेकिन इसको जो हमारा प्लानिंग कमीशन से इस तरह से इनको चेंज किया गया। ये अपना इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। और ये हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें अब एंटरप्राइजेज कर दिया और कैटेगराइज कर दिया, और ये हेडेड बाय सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर सिटिंग एट निर्माण भवन न्यू दिल्ली। और जो हमारे फील्ड के ऑफिस हैं हेडेड बाय डायरेक्टर, जो कि ऑल ओवर पंजाब एंड चंडीगढ़ का ऑफिस सिर्फ लुधियाने में सिचुएटेड है, वहीं से लुक आफ्टर किया जाता है। और मैं इसी तरह से हमारे ऑल स्टेट्स में ऑफिस हैं, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया से हैं। जो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया में हमारे ऑफिस हैं, तो उनका आप बेनिफिट ले सकते हैं कि कहीं पर भी जाकर के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप अपने भी किसी स्टेट में जाकर के, किसी भी सिटी में जाकर के आप अपना एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हमारे उन ऑफिस में जाकर के आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी जो हेल्प ले सकते हैं अपना एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा सर बताना चाहूँगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज किसको कहेंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेज मीन्स इसको अब से पहले ये ओनली इन्वेस्टमेंट बेसिस पे था, लेकिन 1 जुलाई 2020 को इसकी नई डेफिनेशन लाई गई है, और वो नई नोटिफाइड जब किया गया इसको डेफिनेशन को, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक का और टर्नओवर 5 करोड़ तक का। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का और टर्नओवर 50 करोड़ तक का। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का और टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो सकता है। ये MSME को इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जब आप यहां से अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेंगे और आपका ये जॉब नहीं मिलती, मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आपका मन बनता है कि हमने कोई एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना है, तो टेक्निकल नॉलेज तो आपको यहाँ से मिल जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आपके एरिया में जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है उसका स्कोप नहीं है, आप किसी और लाइन में भी जाना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस में हर ट्रेड के एक्सपर्ट हैं। उसके लिए टेक्निकल नो हाउ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, टेक्निकल कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने सोप डिटर्जेंट या कोरोगेटेड बॉक्सेस, या मान लीजिए बोन चाइना क्रॉकरी, या मान लीजिए टाइल है, आपकी फ्लोरिंग टाइल्स है या वॉल टाइल्स है, कोई भी काम अगर आपने करना है तो हमारे यहाँ ग्लास सेरेमिक्स के एक्सपर्ट, केमिकल के एक्सपर्ट, हॉजरी टेक्सटाइल के एक्सपर्ट, लेदर फुटवियर के एक्सपर्ट, मेटलर्जी के एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट, हर ट्रेड के एक्सपर्ट हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने कोई आइटम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उसके लिए रॉ मटेरियल होगा, क्या उसके लिए मशीनरी होगी, और कहाँ से रॉ मटेरियल, कहाँ से मशीनरी मिलेगी, ये आपको, एक तो ये मेन रोल है डिपार्टमेंट का। दूसरा, आपको मान लीजिए आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंसल्टेंसी आपने ले ली, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा। Do you know what a pitch deck means? If you don't have anything right now, let's say, if you want to just start the venture right now itself, how are you going to start it? You'll take loans or issue shares. Okay, that's the later stage. Okay, what else? Banking loans is there, yes. Borrow money, yes. Or maybe means you have some of the money saving from your pocket, or you can means take the money from your friends or from your family. So what that concept is known as, that is known as bootstrapping. Right now, these jargons which I will be using, these are used in the startup ecosystem. So bootstrapping simply means when you use the funds from your family members or from your own pocket. Okay, but like some of my friends, they said that you can take the money from banks or from investors, right? Now for that you need to present this pitch deck to them.
You told me that you saw Shark Tank India, right? Shark Tank India में क्या होता था? A candidate used to come down from the door, then एक sharks का panel बैठा होता था, and then he used to give his pitch in front of all the sharks. That this is my product, this is what I'm be doing, this much revenue I have earned, these are my co-founders, these are my team members, right? So that is known as the pitch deck. And pitch deck is very, very important. You know, one of the largest investment company, Y Combinator, they give you 3 minutes time to give your pitch deck. In 3 minutes, you need to pitch in front of the investors what your product is all about and why they should invest money into your amount. And there are hundreds of competitors who are competing for those 3 minutes. So understand the importance of pitch deck. A pitch deck is simply, it can either be in an oral format or it can either be in a presentation format, right? But what concepts you need to bring it in a pitch deck, that ultimately lies on the product that you want to sell. Funding I've already told you, yes. So you know, first thing I told you about the bootstrapping one, right? After getting it bootstrapped, you can go for the incubators or angel investors or crowdfunding. Now crowdfunding simply means you get funds from many other public sources, right? Then comes the series of funding. You must have heard that इस startup को series A funding मिल गई या उसको series B मिल गई. So there are 5 series A, B, C, D, E. So after these series, then some of my friends say that you issue share. That is calling out for the IPOs. That is initial public offerings. So from that comes into the last stage, when your startup is actually well received by the audience and now you can enter into the IPOs or stock market. Now, can anyone tell me what an innovation means? What is it? What is the meaning of innovation? Anyone? Bringing new ideas. Bringing new ideas, right. Who was it? Who was it? Thank you. Please clap for him. You know, it all revolves around bringing new ideas and bringing some change into it. And let's hear it out from the lady over here, what an innovation means, to get some more clarity about it. Innovation. What is it? How do you do it? Innovation is all about coming up with new ideas or improving old ones. We can think about innovation as a process to create these ideas and test them. From scientists to designers, artists to engineers, anyone can innovate to solve problems. This process starts off with a need or a challenge. What is a problem that you might like to solve? Have a think about all the different ways to solve this problem. What already exists? What materials can you use? Think about some inspiration from the world around you, or even ask some friends to help you come up with some ideas. Then make a prototype. A prototype is like a draft. It doesn't have to be perfect, or work properly, or even use the same materials as the final product. Often, you'll make lots and lots of prototypes before your final design. In order to figure out whether it does what you want it to do, you need to test it. This is often the part where you learn the most about your idea. Is your prototype doing what you want it to do? Can you improve it? What changes would you like to make? After testing your prototype, figure out what you want to change and refine it. Did it fail completely? Great! Use this failure as feedback to help improve it. You can change something big or small, or even go back to the drawing board and start from the beginning. Innovation is nothing new. Everyone has done it at some point in their lives, whether it's making a new invention, coming up with a new dance routine, or even writing a story. Have a look around you. Are there any problems or challenges that you'd like to solve? Next time you have a problem, have a go using this process. Have a go thinking, making, trying, and refining. You never know what you could come up with. So did you understand what actually innovation means? Now tell me something. Have you heard about the company Nokia? Yes. Was it innovative? It was innovative. But did it continue to innovate? No, it perished. Right? How many of you have heard about the company BlackBerry? BlackBerry. Raise your hands who have heard about it.
Okay, okay, okay. Was it innovative? You know, there was a time when the corporates, the industrialists, they used to be, you know, feel privileged that yes, they are having a BlackBerry phone with their hands. Why? Because that was the most innovative product during that time. The email feature which BlackBerry used to have, the keyboard feature which BlackBerry phones used to have, they used to revolutionize the market. Similarly, Nokia came up with such innovative products that, you know, it got down even the gaming pad in your palms. There was a phone with the name of N-Gage was there, right? Then 6600 was there. These were the iconic phone models which actually changed the mobile ecosystem. But what happened after that? The era of smart screens started to evolve. You know, big phone screens started to evolve. The touch screen started to come. Nokia did not innovate itself, and then ultimately it failed. And today it's nowhere out in the market. No one knows Nokia these days. No one uses Nokia phones these days, right? So similarly, I've already told you about this. So, you know, you need to be innovative, and for being an innovative, you know, you don't need to restrict yourself to just one innovation. Innovation should be continuous in nature. You see, these days also you get updates of your apps every day. You know, means if Christmas is coming, if New Year is coming, Swiggy, Zomato, Ola, they come up with some new features to their app. Why? They are innovating themselves. Because if they'll not innovate, they'll perish. Okay, what's the new name of Facebook these days? Meta. So do you know what Meta means? Have you heard about? Okay, did you hear Metaverse before this Facebook changed its name? You know, this Metaverse was coined in late 1800s. But why it is gaining momentum now? Because of one startup which is known as Facebook, right? Facebook changed its name to Meta. Why? Because this is going to be the next stage of innovation in the social media or in all the other things. Have you seen Metaverse? What Metaverse looks like? Have you seen? Do you want to see? Yes. Okay, let's see. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. So before we proceed further to our next keynote session from one of the successful is too less a word to use for this personality, Miss Mandeep Kaur Tangra. So I would like to share a very unique quality which I have personally come across of Mandeep ma'am, which is very uncommon in entrepreneurs, particularly when they build big empires. That is, we always get to know this word of competition when we are in business, right? This is one of the basic words which comes into our mind, competition. So before I share my views about this competition next couple of minutes, I would like to share a quotation that is, don't blow off another's candle. Don't blow off another's candle, for it won't make yours shine brighter. We have come across lots and lots of people, businesses, entrepreneurs who do the gimmicks to actually put their competition down, to let their competition down. So that's why I already shared one of the best qualities which I have personally come across of Mandeep ma'am is she empowers other people. She empowers other budding entrepreneurs. She empowers people, she tells people she shares her idea with the people to start the same thing in their village. That's one of the best qualities of an entrepreneur, that she's never worried about the competition. She wants the same model to be applied in other villages of the country, other cities or villages or rural areas of the country. This is one of the best qualities which I have come across, Mandeep ma'am. So can we please put our hands together to actually clap for this very unique quality in Mandeep ma'am. So I'd like to share a brief profile of Miss Mandeep Kaur Tangra over here. So we are thrilled and
overwhelmed to have her again here in nearly 30 odd days again. We had a privilege to host ma'am on our Big Fish Pool event on 27th of last month. So we are honored to have her here again in 30 odd days for the second time. So Mandeep Kaur Tangra is in itself a brand. It's the founder of CEO of a series of ventures, mainly Semba Curds, an IT services and digital marketing company which is located in village Tangra, a rural location in Punjab, in Amritsar. From past 10 years, Mandeep is working on a vision of changing lives by setting up an IT village in the rural roots of Punjab. She has successfully built a team of more than 125 employees. She is passionate to work on setting up IT village and curb village to city migration, which she calls they're working on a model of reverse migration. So she believes in actually controlling the unemployment and brain drain. So we have a lot of people from Punjab, they move to different countries without considering the opportunities in their own village or in their own areas. So she believes Tangra business model could be replicated and can generate lakhs of white collar jobs in India, not only in IT but in various other sectors as well. Mandeep is an MBA graduate and university topper from LPU. Mandeep has appeared as a speaker twice at TEDx, corporates, the United States, Dubai, IITs, IIMs and many other elite institutions in and across India. So she is a philanthropist as well. Her articles were covered in Corporate Social Directory by ASSOCHAM India alongside other prestigious brands, TCS, Rolls-Royce. Under her philanthropic work, she has successfully organized 500 plus shoe giving and food sharing campaigns. Her venture has been awarded as the upcoming startup of the year 2016 by ASSOCHAM India and received an alumni award for social entrepreneurship in 2019. She was also a university student ambassador for the year 2020 for LPU. She is currently the president of LPU Alumni Entrepreneur Club and the Amritsar Founders for the year 2022. Mandeep has been recognized at various stages more than 500 times. More than 1 million people follow her on social media. In Feb 2022 and April 2022, to study the unique business model venture, Semba Curds has been personally visited by and appreciated by Mr. Manish Sisodia, who is the Deputy Chief Minister of Delhi, and has been recognized by Mr. Arvind Kejriwal, who is the Chief Minister of Delhi, and has also been recognized in 28th of April 2022. Mandeep has been invited by Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, at his residence as a part of Sikh delegates from the corporate world. Recently, on 26th of August 2022, in Vision Punjab event at Chandigarh, Sri Bhagwat Mann, Chief Minister of Punjab, appreciated her remarkable work in the field of entrepreneurship. So actually, if we want to know more about Mandeep ma'am, so she'll herself explain the various techniques to be a successful entrepreneur. And apart that, if we want to talk about Mandeep ma'am, it will take us hours together to explain how successful, not only successful, how has she managed this entrepreneur life, how has she actually managed to work on CSR activities as well, which we call the corporate social responsibilities. She is not only an entrepreneur, she is a social activist, we can call. She loves doing social work. So without taking much of the time now, let me ask the IT team to please play the short video about the journey of Mandeep Kaur Tangra. Can we please give standing ovation to ma'am? Thank you. Can we please? पीछे पंजाब में घूम रहा था तो एक गांव में मैं गया। उस गांव में मैंने पंजाब के देखा बच्चे पढ़ लिख जाते हैं सर तो नौकरी करने के लिए कम से कम अपने आसपास के कस्बे या शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन मैंने पंजाब के एक गांव में अजूबा
मैंने देखा कि अमृतसर से करीब 40 किलोमीटर दूर उस गांव में एक इसी तरह की लड़की ने पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करके मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उसके भाई ने पंजाब की यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई पूरी की और दोनों भाई बहनों को दोनों अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। दोनों भाई बहनों को जैसा आजकल चलता है बहुत बड़े बड़े पैकेज के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा के अपने गांव में एक आईटी कंपनी बनाई। वैसी आईटी कंपनी जैसी हम आज सुनते हैं बेंगलोर में बन रही है, पुणे में बन रही है, जिनको हम आईटी सिटी बोलते हैं, साइबराबाद बोलते हैं, साइबर सिटीज बोलते हैं, उन सब में बन रही है, गुड़गांव में बन रही है। वैसी आईटी कंपनी स्थापित की और धीरे धीरे करते हुए आज वो आईटी कंपनी 100 इंजीनियर्स और 100 लोगों को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है। उस गांव में बनी हुई आईटी कंपनी और अमृतसर शहर में रहने वाले लड़के और लड़कियां जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हुई हैं, अब नौकरी करने 40 किलोमीटर दूर उस गांव में जाते हैं। ये सॉल्यूशन है। काम बहुत प्रगतिशील होगा। देश का पहला दिवस है प्रोग्राम के गाँव में गाँव से शहर जाके कर सकते हैं, गाँव से शहर डेली अपराध करते हैं, हम कहते हैं बट शहर में रहते हो, गाँव में नौकरी कर रहे हो, ऐसा गाँव में नौकरी कर रहे हो। दिस इज आईटी कोच बहुत अच्छा है। अपने पिंड और 150 के करीब उसे पिंड के बंदे काम करते हैं। अगला उन्हें ये एक्सपैंड किया था, नेक्स्ट पिंड च किया ना कि अपने पिंड च कोई ज्यादा ला के उन्होंने कवे कि इत्थे आओ। सो ਆਪਾਂ भी थोड़े जिहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ फैलण ਦੀ ਲੋੜ है, ਆਪਾਂ चंद शहरों तक सीमित हो गए। So normally I speak on the stage, but today on dais because इतनी जगह पे गेस्ट लेक्चर देने के बाद hundreds and hundreds of colleges on social media there is more than 10 lakh people who follow me. वो हमेशा ही कहते हैं मैम हमने भी सुनना है. So today I am even live on my Facebook page for my audience and as well as the students of City University. So I got a different topic today. Normally I share my journey as an entrepreneur and today I am going to talk about the traits we need to be a successful entrepreneur. क्या qualities चाहिए हमें एक successful businessman बनने के लिए, एक entrepreneur बनने के लिए और especially अगर मैं social entrepreneurship की बात करूँ. कभी फिर वक्त लगे तो I will share my journey also that from a small village Tangra where my father runs a flour mill, मेरे पापा की आटा चक्की है गांव में, and from a student who was the topper of the university but couldn't pay her fee on time, still being the topper, and how successfully today with an honest ethical journey of our business we are paying more than 125 software engineers, graphic designers, video editors at our village. We are the first IT company in Punjab जिसने कभी सोचा कि मैंने रूरल लोकेशन से, मैंने विलेज से IT कंपनी खड़ी करनी है. So I am choosing Hindi and English as my language because I know कि आप अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं. So ज़िंदगी में हम कुछ भी पूरा नहीं पा सकते.
देर इज़ नथिंग वी कैन से कि परफेक्शन है। हम हमेशा ऑनेस्टी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम हमेशा ट्रुथफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अच्छे बनने की रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम पे उठने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर हम 100 आउट ऑफ 100 ना तो उसको अचीव करने की कोशिश करें और ना ही अपनी प्रैक्टिस अच्छा बनने की छोड़ें। कभी भी गिव अप ना करें कि कुछ अच्छी जो आदतें होती हैं, अच्छी जो चीज़ें होती हैं, दे आर ऑलवेज प्रैक्टिस्ड, दे आर नेवर अचीव्ड। तो हमने कभी हमने सोचा कि हमने सच ही बोलना है तो झूठ बोला जाए, हमने सोचा कि हमने 100 आउट ऑफ 100 लेनी है 99 आ जाए, हमने सोचा कि हमारी सेल 5 करोड़ हो जाए तो 4 करोड़ हो जाए। तो हमने गिव अप नहीं करना, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा उनकी प्रैक्टिस होती है, उनको बार बार ठीक करना पड़ता है, हम उन पे मुकम्मल पहुंच नहीं सकते। दिस इज़ व्हाट सो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। I have 20 to 25 minutes, so I will try to cover in my given time. So first thing, मैंने प्रैक्टिस का आपको बता दिया। सो जो सारे ट्रेड्स हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल बंदे में या फिर एंटरप्रेन्योर में ज़रूरी हैं, दे नीड टू बी प्रैक्टिस्ड। सो पहली चीज़ कि हम क्रिएटिव होने चाहिए, हम इनोवेटिव होने चाहिए। हमने जब भी कोई नई चीज़ शुरू करनी है, या तो हमने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आना है कि जो पहले कभी नहीं हुआ, और या फिर हमने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिफरेंटली कैसे करते हैं उसके बारे में हमने सोचना है कि वो कैसे कर सकते हैं। जैसे आईटी कंपनीज बहुत हैं इंडिया में, आईटी कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत हैं। सारी आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं, वेबसाइट्स बना रही हैं, मोबाइल ऐप्स बना रही हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। बट मैंने सेम काम को डिफरेंटली किया। मैंने ये सोचा कि ये जो 50,000 सैलरी बच्चे लेते हैं, ये गांव में भी पॉसिबल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमें शहर जाना पड़े। 1-1 लाख की सैलरी गांव वाले बच्चों को भी मिल सकती है अगर हम उनको राइट स्किल्स में ट्रेन कर दें। हमारे जो बच्चे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में बैंगलोर में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं, उनको अच्छा पैकेज गांव में भी मिल सकता है। सो मैंने सेम बिजनेस को, आई चूज द सेम बिजनेस बट इन अ डिफरेंट मैनर, एंड इट हैज़ बिकम one of the unique business model I have presented hundreds of times at so many stages, कि ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल बन गया जिसमें फ्रंट पे तो सेम सर्विसेज आ रही हैं पर बैक एंड पे इट्स अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल। इट इज़ द फर्स्ट आईटी कंपनी फ्रॉम अ विलेज विच हैज़ मोर देन 100 एम्प्लॉयज़। सेकेंड, एज एन एंटरप्रेन्योर आप जिंदगी में कुछ भी चाहते हैं, चाहे एज अ स्टूडेंट, चाहे एज अ बिजनेस पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर विजन इन योर लाइफ। हमने करना क्या है उसकी क्लैरिटी बहुत चाहिए। हमने क्या करना है और कैसे करना है, दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट हमने क्यों करना है वो बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का क्यों क्लियर होता है कि मैंने करना क्यों है, तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं आती, उन्होंने सक्सेसफुल होना ही होना है। किसी बच्चे का होगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को ईजी करना है, मैंने बड़ा घर बनाना है, मैंने फ्री हॉस्पिटल बनाना है, मैंने क्यों इतनी मेहनत करनी है। लोग आपको कहेंगे कि यार इतना पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें तो ईजिली अच्छी 50,000 मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, तो वाई 1 करोड़ पर मंथ इतनी प्रॉफिटेबल करके क्या करना है। तो इसलिए आपके पास उस चीज़ का जवाब होना चाहिए कि मैंने और बड़ी कंपनी बनानी है, उसमें री इन्वेस्ट करके मैं थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जॉब देना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने गांव में फ्री हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं 1000 लड़कियों को फ्री पढ़ाना चाहता हूँ। सो द वाई शुड बी क्लियर। हम मेहनत अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए कर रहे हैं। भगवान ने हमारे अंदर कितनी शक्ति दी है, हाउ मच पावर वी हैव इन आवर बॉडी, हाउ मच पावर वी हैव इन आवर सोल एंड इन आवर थॉट्स,
उसको चेक करने के लिए हम मेहनत करते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। पैसे आपको अपने आप फॉलो करेंगे जब आप इस चीज़ के लिए काम करोगे कि मेरे में कितनी जान है, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। सो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि विजन हैज़ टू बी क्लियर। जैसे मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। मैंने पढ़े लिखे बच्चों को जिनके पास जॉब नहीं है उनको वाइट कॉलर जॉब देनी है गांव में। उनकी सैलरी 50,000 होनी चाहिए, उनकी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। ये मेरा विजन है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कितने बच्चे बनाने हैं, ऐसे कितने बिजनेस मैंने ओपन करने हैं जिसमें ये ब्रैकेट कंप्लीट हो सके कि जो पंजाब का या इंडिया का यूथ है जो कि पढ़ा लिखा है पर उनके पास जॉब नहीं है, उनको हम अच्छी जॉब कैसे दें कि वो बैंगलोर ना जाएं, वो कनाडा ना जाएं, वो यूएस ना जाएं, उनको कैसे रोकें। रिवर्स माइग्रेशन हम कैसे करें कि लोगों को ये ना लगे कि गांव से मुझे शहर ही जाना पड़ेगा। एंड इसके साथ ही अटैच होता है यू शुड बी विजनरी। आप एज ए एंटरप्रेन्योर कुड सी, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के सोच सकती हूँ कि एक दिन हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी कंपनी होगी पंजाब के। मैं ये सोच सकती हूँ कि हर स्टेट में मेरी कंपनी होगी। मैं सोच सकती हूँ कि दुबई में, न्यूयॉर्क में मेरा एक दिन ऑफिस होगा, राइट। सो दैट काइंड ऑफ विजनरी थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थिंक बिग, जिसको हम कहते हैं कि हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है। थर्ड, you need to be very disciplined in your life because time is everything। आपको आज से ही अपनी डेली एक्टिविटीज गूगल कैलेंडर में या किसी भी कैलेंडर में या फिर अपनी कॉपी पे टाइम वाइज यू हैव टू मैनेज थिंग्स बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग। और उससे भी ऊपर बात कर लो तो हेल्थ इज एवरीथिंग, जो सर आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो टाइम जो है वही सारा कुछ है। हमने टाइम को, जिस बच्चे ने बेस्ट यूटिलाइज कर लिया उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो डिसिप्लिन हैज टू बी देयर एंड डिसिप्लिन हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, उसमें भी हमें प्रैक्टिस चाहिए। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। आपको अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो चाहिए। इट्स ओके, हाँ प्लीज। कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो आपको चाहिए। आपने बहुत सारे तरीके, द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज मीटिंग समबडी डायरेक्टली। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, अगर हमने सबसे ज़्यादा सीखना है तो आप 1-to-1 रख लें किसी अच्छे बंदे के साथ कि सर और मैम आई वुड लाइक टू सिट विद यू and these are my questions, can you please answer, right? Second, you can read books, n number of books. Third, audio visual is very much impactful, आप वीडियो के जरिए चीज़ों को देखें। और फोर्थ फिफ्थ जो भी आपको सही लगता है। सो कंटिन्यूस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 360 डिग्री लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स पढ़नी पड़े, चाहे हिस्ट्री, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी तरह की लर्निंग हो। जो एक एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसने डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं, उसने डिसीजन लेना होता है, उसने ट्रेंड एनालिसिस करना होता है कि आगे क्या हो सकता है। सो इसलिए कोई भी नॉलेज हमारे लिए खराब नहीं है। हम किसी भी तरह का मैगजीन पढ़ सकते हैं और किसी भी तरह की फील्ड की हम नॉलेज ले सकते हैं। सो नॉलेज is another thing कि we need to be those people कि जो continuously learn कर रहे हैं। Fourth, leadership। लीडर हमने बनना नहीं है, लीडर हमने लीडरशिप ग्रैब करनी है जिंदगी में। हमारी क्लास में हमारे टीचर्स पूछते हैं कि ये काम कौन करेगा, तो हमने उठ के आंसर देना है कि हमने करना है। घर पे हमें कोई काम कहा गया है तो यू शुड ग्रैब लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मेरे आगे 10 बंदे हैं और मैंने उनको काम बांट दिए। यही कहते हैं ना, ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप होती है, वो तो होती है कि हम बांटते हैं, पर हम काम लेते कितने हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेते हैं, हम एज ए लीडर कितने काम जिंदगी में करके दिखाते हैं कि जो बाकी फॉलो कर सके।
सो दिस शुड बी इंकलकेटेड इन योर डेली रूटीन्स। आपकी डेली रूटीन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि मैं हाथ खड़ा करके, अपना आलस छोड़ के, अपनी बॉडी पेन को छोड़ के, अपने मेंटल स्ट्रेस को छोड़ के मैं सुबह मैं कहूँ कि ये काम मैं करूँगा। सो लीडरशिप जब आपके दिमाग में आए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप लीडर नहीं बन सकते, टीम को नहीं मोटिवेट कर सकते, आप एज ए लीडर काम नहीं करवा सकते, सो एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट मैच विद यू। इन डूइंग योर ओन बिजनेस यू हैव टू डेवलप दिस क्वालिटी जिसको हम लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप के साथ जो अटैच है, आपने आगे लीडर्स बनाने वाला लीडर चाहिए। वो कैसे बनते हैं कि जब हम जो भी हमें नॉलेज है वो 101% किसी को हम सिखा देते हैं, तब हम एक ऐसे लीडर बनते हैं कि जो लीडर्स ग्रो कर सकता है। वी नीड टू बिकम such kind of leader who can grow other leaders, who can build leaders, who cannot form a team of employees but a team of leaders, ताकि उसके आगे आगे भी 100 बंदे काम कर रहे हो। सो हमारा जो एज ए एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग मोड होना चाहिए, एज ए लीडर ट्रेनिंग मोड होना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये होना चाहिए कि हम किसी और को भी एज ए लीडर ग्रो कर सकें। सपोज आप किसी क्लब के प्रेसिडेंट हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और आपने ये भी इनिशिएटिव लिया कि मैं अपने जूनियर में से अगले साल इसको प्रेसिडेंट हम बनाएंगे और 1 साल में इसको ट्रेन करूंगा, तो वो कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। आप प्रेसिडेंट उतरने से पहले 2 महीने पहले आपके पास बंदा रेडी हो कि मैम दिस पर्सन कैन डू द जॉब एग्जैक्टली लाइक मी। तो हमें जिंदगी में हम जितने लोग ऐसे बनाते जाएंगे कि जिनको बिना देखे वो हमारे जैसा काम करें, उतने हम लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। बट कई एंटरप्रेन्योर्स अपनी ओनरशिप, अपनी लीडरशिप, अपनी अथॉरिटी किसी को देना ही नहीं चाहते। बट विदाउट ट्रस्ट यू कैन नेवर ग्रो। आपको 60% धोखेबाज भी मिलेंगे जिंदगी में, उनके साथ साथ जी के हमें 40% जो हमारे हैं उनको ग्रो करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। हमने घर पे सुबह तैयार होने वक्त ये नहीं सोचना कि मैंने ब्लैक डालना है कि वाइट, मैंने पराठे खाने के फुल्का, मैंने 9 बजे जाना है कि 9:15, मैंने अब उठना है कि नहीं। हमने क्विक डिसीजंस लेने हैं, और क्विक डिसीजंस लेने की जो एबिलिटी है वो घर से शुरू होती है। और डिसीजन मेकिंग में ये भी चीज़ इंक्लूड होती है कि आपने दूसरे के बिहाफ पे भी डिसीजन ले लिया। आपके मम्मा ने पूछा कि मैं इस प्रोग्राम पे जाऊं कि ना, तो आपने बता दिया कि नहीं, रहने दो, ठीक है। आपके भाई ने पूछा कि आज कॉलेज जाऊं कि ना जाऊं, तो आपने मोटिवेट किया कि आप जाओ, तो आपने क्या किया, दूसरे के बिहाफ पे भी डिसीजन ले लिया। सो दीज थिंग्स हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एट होम इटसेल्फ, एट यूनिवर्सिटी लेवल इटसेल्फ। फिर वो जब लाइफ में, जब आपने टेडेक्स में बोलने जाना होगा, आईआईटी में लेक्चर देने जाओगे, तो आपको वो पूछेंगे कि मैडम 16th को आओगे कि 17th को, तो यू कैन क्विकली आंसर कि 16th को। यू नो दैट एबिलिटी, जितने आप जिंदगी में फास्ट डिसीजंस लेंगे उतने आप राइज करते जाएंगे, और उसमें 60% आपके डिसीजन हो सकते हैं गलत हो जाए, सबकी परसेंटेज अलग हो सकती है, बट द मोर यू फेल द मोर यू बिकम मैच्योर, और आप जिंदगी में अच्छे होते जाएंगे। अगर हम फेल ही नहीं होंगे, गलत डिसीजन नहीं लेंगे, तो हम सीखेंगे भी नहीं। यू नो दैट इज द कोर ऑफ द सक्सेस, कि जितने हमारे डिसीजन मेकिंग में फेलियर होते हैं उतने ही हम जिंदगी में इम्प्रूव करते जाते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि क्या हमने नहीं करना, क्या हमने करना। नेक्स्ट, माय 7th पॉइंट इज एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सक्सेसफुल पर्सन, कि आप जिंदगी की छोटी छोटी नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं। आप जिंदगी में कहीं पे भी कोई डीमोटिवेटेड है उसको मोटिवेट कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस हमारे खुद से शुरू होगी।
जब हमारा मूड खराब है तो हम मुंह धो के मेकअप कर सकते हैं। हमारा मूड खराब है, हम तैयार होके अपनी टर्बन बांध सकते हैं। हमारा मूड, हमारे घर पे कोई डेथ हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हम फिर भी अपने एम्प्लॉय का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारे एम्प्लॉय की सुबह मदर की डेथ हो गई, शाम को हमारे एक दूसरे एम्प्लॉय की शादी है, हम वो भी अटेंड करके शाम को वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। सो स्विच ओवर भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि एबिलिटी टू इंस्पायर समबडी, रोज़ ही आपके आसपास इतने दोस्त होंगे, इतने घर पे मेंबर्स होंगे कि जो नेगेटिव सिचुएशंस बताते रहते हैं कि मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है। आप में एक लाइन में अगर आपको बताऊं कि एबिलिटी ये होनी चाहिए कि गॉड हैज़ गिफ्टेड मी सच अ माइंड, गॉड हैज़ गिफ्टेड मी सच अ सोल एंड हार्ट कि आई कैन फ्रेम द बेस्ट पॉजिटिव आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हमने वो अचीव करना है। मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, वो हमने कौन सी बनानी है कि यार तुम मुझे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन दे दो, कोई भी छोटी छोटी नेगेटिव या बड़ी नेगेटिव सिचुएशन दे दो, आई कैन थिंक दिस सिचुएशन इन अ पॉजिटिव मैनर, आई कैन फ्रेम अ पॉजिटिव आंसर फॉर दिस सिचुएशन। और क्योंकि माइंड चेंज होने से, सोच चेंज होने से रास्ते बदल जाते हैं, वहाँ से चेंज आता है असली। सो हमने अपने आप में ये क्वालिटी लेके आनी है कि वी हैव दैट एबिलिटी टू इंस्पायर द नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ एज अ बिजनेसमैन, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं देखूंगी कि ये सारे जो बच्चे हैं, इसमें से कितने बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारी उम्र हमारे काम आने वाले हैं और हम उनके काम आ सकते हैं। We need to build up professional relationship with people we are meeting in our everyday life. आपकी लाइफ में जितने करंट भी लोग हैं जो आपको लगता है कि these contacts I have to maintain a diary for it, write their numbers, their address, their birthday, their email and maintain the whole contact list. उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि आज मैंने ये मैगजीन पढ़ा है, आउटलुक, बिजनेस आउटलुक मैंने पढ़ा है, इसमें मैंने 5 आर्टिकल पढ़े हैं, इन 5 आर्टिकल में मुझे ये 15 बंदे मिले हैं जो CEOs हैं, CFOs हैं या किसी भी डेजिग्नेशन है कंपनी में। यू कैन राइट एन ईमेल टू देम, यू कैन टेल देम कि सर आई हैव रेड योर आर्टिकल टुडे इन बिजनेस आउटलुक, कैन आई schedule a one-to-one session with you over Zoom और can I meet you directly। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा नेटवर्क जो है बना सकते हैं, जो कि हम किसी भी तरह का बिजनेस खोलें तो वो हमारे काम आएगा। जब हम नेटवर्किंग में स्ट्रांग होते हैं तो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव होती है और हमें कस्टमर को ट्रस्ट नहीं दिलवाना पड़ता। कस्टमर मनदीप के साथ काम करना चाहेगा। इट डजेंट मैटर कि मैं किस कंपनी में हूँ, मेरी है या मैं किस और कंपनी में काम कर रही हूँ, तो रिलेशन के बेस पे काम चलता है। सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद अ गट फील। एक कॉन्सेप्ट आया था बीच में जो अभी भी चलता है कि कैलकुलेटिव रिस्क ले, बट मेरा जो सोच है वो ये है कि अगर आप डीपली इन्वॉल्व हैं अपने विजन में, अपनी जिंदगी के सपने में, आपको इतना ज़्यादा अगर विश्वास है तो गट फीलिंग से आप रिस्क लें। आपके अंदर आपकी आवाज़ आ रही है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी हम रिस्क लेते हैं तो गट का साथ में स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी होता है कि पक्का है कि मैंने अगले साल 5 करोड़ सेल करनी है, इसलिए मैं ये 50 लाख का लोन ले रही हूँ, राइट। सो अगर आपका विजन या आपकी जो फाइनल टारगेट है वो डाइसी होगा कि पता नहीं सेल 5 करोड़ होगी कि नहीं, पर मैं लोन 50 लाख का ले लूं, तो वो नहीं होगा, राइट। सो योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शुड मैच विद द गट फीलिंग यू हैव इनसाइड यू कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नेक्स्ट is not giving up at any point of time। मैं उन बच्चों में से हूँ कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है,
बट फीस फिर भी लेट दी है। तो मुझे फर्स्ट आने से मेरी फीस भी रोक नहीं सकी कि मैंने फीस दी है कि नहीं दी। मैंने गिव अप नहीं किया, मेरा जो टारगेट है फर्स्ट आने का वो कंप्लीट हुआ है। यही चीज़ मैं अपने बिजनेस में फॉलो करती हूँ। जितनी मर्जी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, आपके क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन भी आप पे ना बिलीव करे, बट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। मैं हमेशा कहती हूँ कि when no one is with you, you still have you with you। आप दो लोग हैं, एक नहीं है, ठीक है। सो आपके अंदर आपका ही दोस्त है, आपके अंदर आपका ही मेंटर है, तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। सो यू शुड नेवर गिव अप इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन। हमेशा बिजनेस में, बिजनेस कभी बंद नहीं होते, बिजनेस में कोर्स करेक्शंस होती रहती हैं। हो सकता है कि मैंने ऐसे एज ए होटल इंडस्ट्री खोली हो और फिर कोई और इंडस्ट्री में लैंड अप कर जाऊं। मैंने रेस्टोरेंट खोला हो और बाद में मैं कोल्ड स्टोरेज पे लैंड अप कर जाऊं, राइट। तो बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, हम बिजनेस को खत्म करते हैं। हमेशा कोर्स करेक्शंस होती हैं कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, इस सिचुएशन को मैं कैसे बनाऊं। लाइफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू make the best balance of the current minute we are living in। इसी चीज को अगर हम मेंटेन करते जाएं कि इस करंट जो मेरे में मिनट चल रहा है जिंदगी का, इसको मैंने बेस्ट बैलेंस कैसे करना है, मेंटली कैसे बेस्ट बैलेंस करना है, फिजिकली कैसे बेस्ट बैलेंस करना है, प्रोफेशनली कैसे करना है, पर्सनली क्या करना है। जिस बच्चे को ये पता चल गया कि मेरा काम क्या है, मेरा काम ये नहीं कि 10 साल बाद क्या होगा, मेरा काम ये है कि ये जो मिनट है इसमें मेरा बेस्ट एक्सप्रेशन, बेस्ट थॉट, बेस्ट मेरा खुद का मोटिवेशन लेवल वो क्या होना चाहिए। सो वी नीड टू वर्क मिनट टू मिनट कि मैं अपना हर मिनट परफेक्शन की तरफ लेके जाऊं। इसमें ये ना हो कि 1 मिनट में सैड हो गया, 1 मिनट मैंने फोन पे फालतू वीडियो देख लिया तो मेरे मिनट लाइफ के वेस्ट होते जाएं, राइट। सो वी हैव टू प्रैक्टिस मेकिंग आवर एवरी मिनट द बेस्ट मिनट ऑफ आवर लाइफ। लास्ट पॉइंट मेरा है कि कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। माजिद सर ने बड़ा अच्छा पिक किया कि हम उनमें से हैं जो दूसरों को भी ग्रो करना चाहते हैं, वो चाहे एम्प्लॉई है चाहे कोई और बिजनेस करने वाला है। जब आप में शेयर करने की, देने की कैपेसिटी आ जाएगी, वैसा थॉट आ जाएगा, तो सब आपको ग्रो करने में लग जाएंगे, राइट। सो यू शुड बी अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैंने अपने बिजनेस में ऐसा भी किया है। मेरा एक शो है मनदीप कौर टांगरा शो, उसमें 126 एपिसोड्स हो गए हैं। उसमें मैंने उन लोगों की भी इंटरव्यू की है जिनकी खुद की आईटी कंपनी है और उनका सेम बिजनेस है, ठीक है। दैट लेवल ऑफ गिविंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को भी प्रमोट कर सकता हूं, मैं उसके साथ ऐसे रिलेशन बनाऊं कि हम कोलैबोरेट करके कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, रादर देन कि हम कट थ्रोट कम्पीट करी जाएं, क्योंकि कस्टमर्स की कोई लिमिट नहीं है, दुनिया में काम करने की कोई लिमिट नहीं है। कोई देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू whom we can serve. So these are my particular 11 points which I shared from my experience with you, and I wish you all the best. Thank you. Thank you. Told her that she was too emotional and just not fit for television. He is having a rich experience in successful entrepreneur, so I am going to invite him for the keynote speech. 30 years old, he was left devastated and depressed after being removed from the company he started. They overcame many obstacles and many doubters and had the rare courage to create a life that was true to them. So if you have any doubts, you can just contact. So now, okay.
गुड आफ्टरनून। तो मैं पंजाबी च बोलूँगा, हिंदी भी चलेगी। और मैनू टाइम दिता गया सीगा 20 मिनट का, तो कुंदन लाल जी ने थोड़ा जिहा चेंज किया, कहते नहीं यार तू 10 मिनट के कंप्लीट कर, तेरे च इन्नी पावर हैगी और 10 मिनट च ही अपनी गल रख सकदा। मैं चलो थैंक यू यार इस चीज़ कहने लगे है ना। तो तुसीं एक आइडिया लगा लिया होना कि एक की चीज़ हैगी आ मेरी इस वीडियो तो कि की कर रहा मैं, किद्दां दा काम कर रहा। तो मैं असल च 20 मिनट के हिसाब नाल अपने आप डिज़ाइन किया सी, पर फिर भी मैं उन्होंने कट शॉर्ट कर रहा तो ताकि तुहानूं पूरी वैल्यू दे सकां तुहाडे इत्थे मैनूं सुनन वास्ते। ठीक है, तो मैं अपने बारे दसदा कि 10 पढ़िया होया मैं और एक बिजनेस रन कर रहा। तकरीबन 200 के नेड़े मेरे को इंप्लाइज़ है ने, स्ट्रेंथ हैगी आ सारी, और 500 के करीब मेरे को डीलर नैटवर्क है सारा, और कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जी मशीन तुहानूं दिखाई सी ये इंडिया के पहले मैन्युफैक्चरर असी जिहड़े कि इंडिया पहली बार असीं डिवेलप कीते सीगे अज तो 20 साल पहला। तो इस मशीन अज असीं लीड भी कर रहे हैं, बहुत बंदे सानूं फॉलो भी कर रहे हैं। थैंक यू। तो थैंक यू वाला चैप्टर मैं कट्टन लग्या क्योंकि मैं कईयां दा धन्नवाद करना सीगा, वो मैं शॉर्ट करता हुण नहीं मैं करूँगा, पर तुसीं जरूर सारे ताड़ियां मार दिओ। तो स्टार्ट मैं ये करदा कि जिमें तुसीं हुण बिजनेस की दुनिया जाना है तो ट्रेनिंग लैके एक सब तो पहला स्टैप हुंदा वो हुंदी ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुहानूं अज मेरे इस 10 मिनट चो की चाहिए है, ये पहला क्लीयर हो जाओ जरूर, क्योंकि अगर मैं तुहानूं इन्वेस्ट करने तो बाद तुहानूं कोई रिटर्न ना दे सकिया तो यूजलैस आ मेरा बोलना इत्थे। तो जरूरी आ मैनूं 10 मिनट दिओ तो अपनी इन्वेस्ट जी तुसीं मेरे ते कर रहे हो वो तुहानूं बड़ी वैल्यू दे के जाऊँगा मैं। तो मैनूं सुनने का फिर एक तरीका हुंदा, हर कोई नॉर्मल तो मैनूं भी नहीं सुन सकता ना। सुनने का तरीका मेरा की होगा, तुसीं एक वो जरा चैक कर लो। मैनूं इत्थों ना सुनियो कि मैं कुछ चंगा बोल रहा, इत्थों ना सुनियो कि मैं कुछ गलत बोल रहा, इत्थों ना मैनूं जज करो कि ये बहुत सोहना है ना, इत्थों ना जज करो कि ये बहुत गंदा, इत्थों ना जज करो कि बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, इत्थों ना जज करो कि पंजाबी बोल रहे हैं। सिर्फ सुनना, जिवें तुसीं स्टोर च जाते हो, शर्टां चैकते हो, पा के देखते हो, नहीं चंगी लगती ला के रैक से चल के वापस आए ने, उदा ही तुसीं वापस चले जाओ। अगर कुछ चंगा ना लग्या तो उन्होंने दिल से ना लैके जाओ। एक कन्वर्शन जिहड़ी है कि मैं हुण करूँगा, यह थाउजेंड्स पीपल को इंपैक्ट कर चुकी है, जिस मैं भी एक है। बहुत देर तक रहने वाला असर पाती है ये मेरी गलबात जिहड़ी मैं 5-10 मिनट तुहाडे नाल करनी है। वो हैगी आ कि सोर्स की होगा तुहाडे बिजनेस का। तुसीं जिहड़ा बिजनेस कर जाओगे, ट्रेनिंग कर जा रहे हो, सर ने भी अज बुलाया कि सक्सैसफुल एंटरप्रेन्योर अपने सक्सैस स्टोरी तुहाडे नाल शेयर करेंगे। तो मैं चलो अगर तुसीं मनदे हो मैं सक्सैसफुल हाँ तो मेरा भी तो कोई सोर्स होएगा ना। अगर अज सिर्फ सोर्स ही आइडेंटिफाई कर लीए, बिजनेस का दूर की गल हर चीज़ के सक्सैस हो सकते हो। इंटरस्टेड वो ओके। तो वो जाके अगली गलबात करने लई जिन्होंने कहते गंगोत्री सुने होना भी, गंगा जितों बहती है कहते उत्थे वो गंगोत्री कहते हैं। तो वो सोर्स हो गया गंगा का एक तरह का मोटा मोटा मन है ना। तो उस तरह एक बिजनेस का, एक एंटरप्रेन्योर का एक जो ऑनरशिप लैके अगे जा रहा है वह भी तो कोई सोर्स होएगा। अगर वो सोर्स अज पकड़ लिया जाए तो बहुत सारे बिजनेस भी कर सकते हो, ना कि बिजनेस जिथे अटके होने उतों निकल भी सकते हो। अज उतों सुने एक क्वेश्चन है सारे लिए, हू यू आर। अगर मैं पूछा कि हू यू आर, सिंपल लफ्ज तुसीं कौन हो, तो हो सकता तुसीं कहो कि मैं एक डॉक्टर हाँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हाँ, मैं बहुत बढ़िया गलबात करदा, मैं डॉक्टर हाँ, मतलब बहुत कुछ होगा अपने बारे तुसीं मैनूं दसोगे, मैं ये हाँ तो मैं वो है ना। तो अगर सोर्स से ले जाने की गल करा तो एक छोटी एक्सरसाइज करदा जी कि 2-3 मिनट से खत्म करने की कोशिश करांगे। वो एक्सरसाइज ये हैगी आ कि अपने आप को राइट नाउ सवाल करना शुरू करो कि मैं ये किताब नहीं प्रैक्टिकल हैगा कि मैं नहीं, ये मैं नहीं हैगा तो मैं साइड पर रख दूंगा, ये चलो मैं नहीं है।
मैंने चाहिए मैं ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕੀ मैं माइक हाँ नहीं ਇਹਨੂੰ मैं साइड पे रखदा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ना एक्सरसाइज करते जाओ मज़ा आ जाएगा जिंदगी का ਤੁਸੀਂ अपने गॉगल्स हो नहीं फिर ਤੁਸੀਂ कौन हो फिर कोई कहूगा कि नहीं मैं तो जतिंदर सिंह हाँ तो देखा जाए तो जतिंदर सिंह मेरा नाम है मैं जतिंदर नहीं हैगा मेरा नाम की है जतिंदर सिंह बिल्कुल ये भी हैगा होर अगे चलते हम तो मैं अपनी हथ हाँ मैं कि मैं ये हथ हाँ कहते तो इदा ना असं कहना ये मेरा हथ है मैं नहीं हैगा ध्यान नाल रहो बहुत क्रिटिकल कन्वरसेशन है जी कि मैं सिर्फ 10 मिनट के करके लेके आया मैं ये मेरा हाथ नहीं है अगर मेरा हाथ मान लो बाई चांस कट के इतने पिया होए तो तुसी की कहोगे ये जतिंदर का हाथ है कि जतिंदर है की कहोगे जतिंदर का हाथ है यदा मतलब हाथ भी मेरा नहीं हैगा होर अगे चलते हैं होर हर चीज़ छड्डते जाओ करते करते आप कहते चल यार मैं अपना जी कहते हार्ट हाँ मन हाँ बहुत कन्वरसेशन होंगे आले दुआले असीं उन्होंने मनते हैं तो उन्हें जिउने भी हाँ एक उस तो अगे लैके जाना तुहानूं अज मैं यार मन के पिछे भी कुछ होगा जोड़ा कि सोर्स आप तो लभ रहे ना अज गलबात अगर सोर्स मिल जाए तो स्वाद आ जाए अज अगर मैं लीव कर ही जा रहा हर चीज़ ये भी मैं नहीं है ये भी मैं नहीं है ये भी मैं नहीं है तो फिर मैं है कि तो तुसी जाते 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 उस जगह पर पहुँचोगे जिथे कि थोनू कोई आंसर नहीं मिलेगा थोड़े को कोई आंसर नहीं होगा मैं कौन वो ही गंगोत्री है वो ही हर चीज़ का सोर्स है क्योंकि we do have refreshments for you now can we see some smile on your face मैं बुरा चलो बुरे के पीछे चलते हैं बुरा क्यों बनया क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटी की इनू पसंद नहीं आई इस करके मैं बुरा ओके चलो वो पीछे चलना की है एक्टिविटी करने तो पहला की सी करते करते फिर मैं नथिंग जाऊँगा जे नथिंग है एवरीथिंग है यदा मतलब मैं बुरा नहीं मैं चंगा भी बोल सकता अपने आप को मतलब एवरीथिंग ही मेरे कंट्रोल च आ रहा इस कन्वरसेशन के नाल तो जिथे नथिंग है उत्थे एवरीथिंग है जिथे भी अटक जाने सिर्फ उन्हें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है कि मैं की कीता सी मैं बुरा बन गया की कीता सी मेरे पैसे डुब गए की कीता सी मेरी लत टुट गई करते 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 तुसी नथिंग च पहुँचोगे उत्थों फिर बूस्टर लगूगा तुहानूं उत्थों फिर तुसी दोबारा जंप करोगे जो तुसी बोलोगे अपने आप को तुसी वो हो जाने हो तुसी जो बोलोगे वो हो जाने हो बिल्कुल वाइट कैनवस के उत्ते सिंपल जी मेरी गल करिए जै जी प्रिंट ही लग के इन्हें व्यू दिखा देना ते वाइट कैनवस का होना जरूरी है ये वाइट कैनवस के वांगू ही असी पैदा हुए सी बिल्कुल नथिंग दे विच मेरी मम्मी ने कहा तेरा नाम जतिंदर सिंह है मैं मान लिया मेरी मम्मी ने कहा हुण 2017 2018 मैं वो मन गया मम्मी कहती इनू सूरज चढ़ना कहते मैं मन गया पर मैं तो नथिंग सी ना जो भी अटको रिवर्स कैलकुलेट करो नथिंग च पहुँचो उतों आदे जो बोलो उधर नूं चलो जिथे नथिंग उत्थे एवरीथिंग हम टाइम छोटा होने करके मैं सिर्फ टिप ते ट्रिक्स की गल करदा जिहड़ी अजकल यूट्यूब पर सर्च करदा किसी भी चीज़ को लैण वास्ते टिप ते ट्रिक दसो की है मोबाइल दी है ना तो मैं भी अपने बिजनेस दी छोटी छोटी चीज़ां दस के जाना ताकि खत्म करा फटाफट कुछ भी तुसी डिक्लेयर करोगे जो नथिंग तो होएगा की कुछ भी डिक्लेयर करो की होएगा ओ यार बह जा तेरे काम का नहीं है तेरे बस का नहीं हैगा इदां दी गलबात होएगी ना ये हैगी पहली स्टेज ऑफ कन्वरसेशन थोड़ी डिक्लेरेशन की पहला रिएक्शन तुहानूं ये मिलूगा लोग थोड़े ते हसणगे ये तू की करन जा रहे हैं तुसी सिर्फ उस कन्वरसेशन के नाल रहना कुछ नहीं चेंज करना तुरते जाओ फिर एक लैवल आएगा लोग थोड़े मूहरे आएंगे विरोध करेंगे रुको तेनों क्या हटता नहीं तू हटता क्यों नहीं विरोध का आऊगा फिर ये नैक्सट लैवल आ उस कन्वरसेशन तीसरा जो अल्टीमेट लैवल आ वो हैगा आखिर जो एग्री करते हैं तुसी पूरी हिस्टरी चेक कर लो कोई अज भी विरोध कर रहा हो कोई अज भी हथ रहा होगा
पर कोई अज भी एग्री कर गया और एग्री होने के नाल ही वो रिजल्ट अज हम देख रहे हैं सारे के सारे। ये 3 स्टेजा तो तुसीं निकलोगे जो नथिंग चो डिकलेयर करोगे कुछ भी, बस ये देखना कि तुसीं राइट नाउ किस स्टेज दे विच हैगे हो। ये बंदा मेरे किहड़ी स्टेज की कन्वर्सेशन ते आ, ये कित्थे आ, बस वेट करो कि ये उस स्टेज ते कदों पहुंचदा। वेलकम आ उन्हां दा। टाइम नूं मैनेज करने की कोई लोड़ नहीं यार, ये किवें हो सकदा टाइम नूं मैनेज करें, बिजनेस किवें होऊगा? टाइम नूं मैनेज नहीं करना कदे भी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी मैनेज आ, तुसीं मैनेज नहीं है टाइम के हिसाब नाल। कल देखिया सूरज लेट चढ़िया होवे, वो बिल्कुल टाइम ते चढ़दा, टाइम ते छिपदा, दुनिया का जिहड़ा मर्जी क्यों ना होवे, जो दा शेड्यूल उस हिसाब नाल चलदा। मैं ही नहीं शेड्यूल सूरज के हिसाब नाल उठदा, तो मैं अपने आप को मैनेज करा, वो ज़्यादा रेलीवेंट कन्वर्सेशन होगी कि मैं अपने आप को अज तो मैनेज कर रहा गूगल कैलेंडर पे। टाइम में मैनेज नहीं करना क्योंकि होना ही नहीं, वो ऑलरेडी होए हुए की कर लांगे मैनेज। इस तो एक्यूरेट टाइम कोई हो ही नहीं सकता कि बिना चाबी के पूरा सूरज चल रहा। तो ऑर्गन डोनेशन बारे मैं जरूर गल करूँगा, क्योंकि सब तो उत्तम मशीन मैं इनू मंगदा, जिहड़ियां चेयर्स ते बैठियां ने, ये सब तो क्रिटिकल मशीनां ने जिहड़ियां कि बिजनेस करन जा रही ने, एंटरप्रेन्योरशिप का एक सुपना लेके जा रही ने कि असीं वो करन जावांगे। पर सोच के देखो कि सवेरे उठन लगे थोड़ा सिर दुख रहा हो, थोड़ा तुरन लगे तुहानूं साह चढ़दा होवे, किसी नूं कोई चक्कना पै जाए, थोड़ी बांह दुखदी होवे, इस तरह का एंटरप्रेन्योर दा बिजनेस कैसा होगा? इंपैक्टेड होगा ना, क्योंकि अच्छे शरीर च एक अच्छी सोच भी तो होंगी है ना, वो सोच भी इंपैक्ट करती है, क्योंकि वह सारा का सारा ध्यान वो बॉडी पे चला जाऊगा। मेरा आ पेन कर रहा, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, सब कुछ उधर ध्यान जाऊगा वह। तो मेरी रिकमेंडेशन ये हैगी आ, मैं अपने बिजनेस यूज़ करदा, थानू एक ट्रिप दे रहा, वो ये हैगी आ कि इस मशीन नूं सब तो पहले सर्विस ते लेके जाना। इसकी सर्विस कदों होंदी आ? मॉर्निंग टाइम 4 तो 6। पार्क च जा सकते हो, जिम जा सकते हो, साइकिल चला सकते हो, घरे योगा कर सकते हो, कुछ भी करो, बस यदि सर्विस मस्ट। ये अगर सर्विस तो निकलूगी ना, जो बाहर आउटपुट देखियो, थोड़े इंप्लॉइज की आउटपुट देखियो, वो थोनों देख के चार्ज हो जाया करनगे, यार जे ऐ करता तो मैं भी ऐ करूँगा, क्योंकि इस तो अगे कोई चारा नहीं मेरे को। अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाओ, काफ़ी डॉलर कमाओ, उस बाद हेल्थ पॉलिसियां ले लो, वो जाना तो उत्ते ही है। तो क्यों ना डायरैक्ट ही आपां इन्वेस्टमेंट उत्थे करिए जिहदे लई असीं डिज़ाइन होए आ। एक ये चीज़ का ध्यान करना, इन्वेस्ट तुसीं करना कित्थे आ। बैंक तो लोन लैके हेल्थ पॉलिसी ना लियो कदे, तुसीं डायरैक्ट ही हेल्दी हो सकते हो सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी में देने लई। बहुत चीज़ां उन्हां रिजॉल्व होंदियां ने। तो जदों मैं लास्ट कन्वर्सेशन आ, इस तो ज़्यादा मैं थोड़ा टाइम नहीं लऊँगा हुण। जदों मैनू पता लग्या कि बॉडी इन्नी क्रिटिकल थोड़ी हुंदी आ, ते मैनू मौका मिलिया एक सैमीनार ते, उत्थे एक फॉर्म फिल किए जा रहे थे, जिथे ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म हो रहे थे। मैं फिल कर दिता, फॉर्म बन के मेरे को आ गया। बड़ी क्रिटिकल और लास्ट कन्वर्सेशन है, मैं 2 तो 3 मिनट तो बाद लाऊंगा नहीं थोड़ा टाइम। उस तो बाद मेरे को कार्ड बन के आ गया, अज भी मेरी जेब च, क्योंकि मैं एक प्लैज की कि मैं अपने ऑर्गन जोड़े है ने वो मैं दे के जाऊँगा, इनू साड़ूंगा नहीं, इनू दबूंगा नहीं, वो प्लैज किया। हम प्लैज करने तो बाद एकदम मेरे दिमाग च आया कि यार हम या तो मैं मरन की वेट करा, क्योंकि ये डिलीवरी तो उदी होएगी, या फिर मैं हुणे ही मर जा। दोनों ही मेरे लिए पॉसीबल नहीं सीगे। फिर एक गेम निकली, उस कन्वर्सेशन जो गेम निकली, जो क्वेश्चन आंसर खड़े करते हो फिर गल्लां निकलदियां विचों। ऐसी अल्टीमेट गेम निकली उस चों कि जतिंदर सिंह अज तो बाद तू इन्ना फिट कर अपने आप नूं, अपने खाण का तरीका इन्ना चेंज कर दे कि जिस दिन भी तू मरेगा तेरे 8 ऑर्गन ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ,
मैं तो फिर फायदा देखना ये मेरा की फायदा, ये मेरा डायरैक्ट ये फायदा कि मैं अज ही तंदुरुस्ती की जिंदगी जिउ सकदा। डिलीवरी मैं कदों देनी है मैनू नहीं पता, पर तंदुरुस्ता अज ही है ना। जिस दिन तंदुरुस्ता लाइफ तो उत्थे स्टार्ट होंदी है, बाकी तो रब दे हत्थ आ मैनू वो कदों की कर देवे। पर आपां एक गेम ओपन करती सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ मैं किसी ਨਾਲ करदा, ਇੱਥੇ 200 ਤੋਂ 300 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 300 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ मैं ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ मैं ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ मैं ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। इस चीज़ ਨੂੰ हर किसी के ਕੰਨ तक पहुँचाना भी हर कोई इस एंगल नाल अगर सोचे तो ऑर्गन डोनेशन की जरूरत ही घट जाएगी, तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी। मैं ये तंदुरुस्त, ये मेरे लिए ऑलरेडी तंदुरुस्त है, मैनू फिक्र करने की लोड़ नहीं मैनू किडनी मिलूगी। ऑलरेडी मेरे को बहुत किडनियाँ तैयार पई ने। तो वो फिर मैं चूज़ किया साइकिल चक्या और वर्ल्ड टूर की डिकलेरेशन करती। जनवरी 15 2022 में मैं स्टार्ट किया सीगा। पहला फेज मैं कंप्लीट कर चुकिया, जिहड़ा लुधियाने तो स्टार्ट होके वाया अंबाला बरेली महेंद्र नगर होके काठमंडू गया। काठमंडू तो फिर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी तो रिकॉर्ड च भी दर्ज हो गया, तो ये भी मैनू चंगा लग्या, एप्रीशिएशन मिल गई। तो हुण नैक्सट फेज जिहड़ा मेरा हैगा वो मेरा चल रहा, स्टार्ट होएगा मार्च 2023 दे विच वैंकूवर तो टोरंटो तक, तकरीबन 4500 किलोमीटर का होएगा। फुल ऑफ मतलब पूरा मज़ा करना, उत्थे सब नूं एजुकेट करांगे कि किवें आपां होर तंदुरुस्त हो सकते हैं। अलग लैंगुएज होगी, अलग एरिया होएगा। मतलब मैनूं तो सोच के बड़ा मज़ा आई जाता भी जदों जाऊँगा की होऊगा। ठीक है, तो गल्लां होर बहुत ने। इन्हां ने कहा सी भी नहीं इन्ना टाइम लाउणा, उन्होंने स्क्वीज़ कर, तो मैं सो किया। तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं जो मैनूं 15 मिनट दिते उहदा मैं कुछ ना कुछ तुहानूं रिटर्न मोड़ पाया होऊगा। थैंक यू सो मच। Dignities on dais and dear students, टाइम की स्क्वीजिंग कुछ इस तरह की हुई कि चलते चलते असी रेल के पिछले डब्बे आ गए। वो जो छोटा जहा होंगे पिछों जो जाते हैं ना, जिथे वो गार्ड बैठा होंगे। सो नवदीप जी ने शायद उन्ना भी नहीं मिलना, बट आई विल टेक केयर कि नवदीप जी लिए भी मैं टाइम छड्डदा। सो जिन्ना टाइम दिता गया वो मैं जस्ट एक दो गल्लां पूछूंगा तुहानूं। एनीबडी नोज माई ऑफिस DIC? किसी को DIC बारे पता है? इन पंजाब और इन लुधियाना? ऑल यू बिलोंग टू सिटी एरिया और रूरल एरिया? कुछ रूरल एरिया भी पॉपुलेशन होएगी। पहला तो मैं VC सर का बहुत वड्डा शुक्रगुजार हाँ। मैं इन्नी डिसिपलिनड ऑडियंस नहीं देखी इन एनी यूनिवर्सिटी और इन एनी कॉलेज। सो बिग हैंड। सो आम तौर पर सर असी यूनिवर्सिटी भी जाने या कॉलेज जाने, देयर इज सम हूटिंग काइंड ऑफ। इत्थे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिता जा रहा, सो आई एम वंडर्ड। सो स्टूडेंट्स यार डरो ना, मैं सर नूं कह दूंगा तुसी दसो मेरे दफ्तर बारे किसी को नहीं पता, तुहानूं ना नहीं पता ना, इट्स माई फॉल्ट ना, कोई असी प्रचार ही नहीं किया। सो हेयर आई एम कि मैं तुहानूं दस सकां कि वट इज़ द DIC। DIC एक ऐसा डिपार्टमेंट हैगा जिहड़ा सारे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच जिन्हां दा ऑफिस हुंदा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इहनूं कहा जाता, पंजाबी च जिला उद्योग केंद्र कहंदे इहनूं। सो अज दी जो वर्कशॉप लग रही है, जिसका जो प्रोग्राम है, इट इज़ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा एक जरूर ईमानदारी नाल दस्सिओ कि आपां जदों इत्थे डिग्री करन आए सी या कोई भी कोर्स करन आए हैं तो अपना ये मनशा हैगा कि आपां एंटरप्रेन्योर बनना हैगा किसी का कि नहीं हैगा? एनीबॉडी कैन रेज हैंड? यस सर। एंटरप्राइज बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट? मनदीप जी ने तुहानूं बैटर दस्सिया, जतिंदर जी भी दस के गए हैं। सो वो भी पता कर लिया कि एंटरप्राइज बनने वास्ते की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, की पैसा चाहिए, जगह चाहिए, स्किल चाहिए है, बहुत सारिया 11-12 क्वालिटीज़ मैं मनदीप भी दस के गए एंड ऑफ कोर्स दे आर नीडिड। बट एज फार एज फाइनांस इज कंसर्न, किसी ने कहा कि फाइनांस भी चाहिए, राइट? सो फॉर फाइनांस वी आर हियर, राइट? एक PMEGP स्कीम हैगी, मैं बहुत ज़्यादा स्कीम की ढुंगाई च नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। सारे आप IT नाल रिलेटेड है, सारे आप WhatsApp Facebook सारे देखते हैं।
सो एक साइट नोट कर लो, दैट इज kviconline.gov.in, KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेशन, kviconline.gov.in, जिहदे ते तुसी सिंपल गूगल बाबा नूं तुसी PMEGP भी लिख दोगे ना तो भी तुहानूं दस देगा सारा कुछ। दैट इज PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एंड द बेसिक इज कि असी प्राइम मिनिस्टर दी स्कीम दे विच बेनीफिट लैके एक एंटरप्रेन्योर चलाना हैगा। ते क्यों चलाना हैगा? क्योंकि असी इत्थे आए हैं सिटी यूनिवर्सिटी ये एंबिशन लैके कि असी एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट। सो 50 लाख रुपए तक का लोन अवेलेबल हैगा जी तुहाडे वास्ते, 50 लाख फॉर एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड 20 लाख इज फॉर सर्विस यूनिट। हुण दो चीज़ां आ गई, वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड अनदर इज सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग वो जिस तरह के जतिंदर जी काम कर रहे हैं कि कोई पुरजे लिते 5-4 प्लास्टिक लिता तो एक मशीन बनाती, दैट इज कॉल्ड है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एंड सर्विस यूनिट जिस तरह का मैम मनदीप जी कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर लिता उन्होंने डिवेलप किया वो बनाता। और वो बहुत छोटी जी एग्जाम्पल मैं ब्यूटी पार्लर की दिना आम तौर पर अपने लैक्चरस कि बीबियां जांदियां सर्विस करा के आ जांदियां, जिहड़ी जांदी है वो पता नहीं हुंदा किहो जी, आंदी हुई बहुत सोहनी लगती है। मोबाइल है तुहाडा खराब हो गया, शीशा टुट गया, तुसीं मोबाइल रिपेयर करना दिता तो वो उन्होंने रिपेयर करता, दैट इज अ सर्विस यूनिट, राइट। सो सर्विस यूनिट वो जिथे तुसीं कोई चीज़ रिपेयर या सर्विस करते हो या उन्होंने बना सवार के पेश कर देंगे हो। एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो जिथे तुसीं कुछ बना के बेचते हो या बना के सप्लाई करते हो। 50 लाख इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख इज फॉर सर्विस यूनिट। लोन अवेलेबल हैगा विद ड्यू सब्सिडी, विद ड्यू सब्सिडी। सब्सिडी तो मीनिंग पता जी किसी को? एनीबॉडी कैन रेज हैंड। सब्सिडी लोन का वो कंपोनेंट जिहड़ा असी वापस नहीं करना। सानू किसी बंदे ने 10 रुपए देते, वो कहता तू मैनू 6 रुपये मोड़ दी, सानू कितनी खुशी होगी, राइट। सो गवर्नमेंट ने जिहड़ी ये PMEGP स्कीम दी है, दिस इज विद द सब्सिडी कंपोनेंट। जे तुसीं जिस तरह मैम ने रूरल एरिया यूनिट खोलिया हैगा, जे तुसीं कोई रूरल एरिया यूनिट लगाने हो तो तुहानूं 35% सब्सिडी ये अलाउड है। 35%। जे 10 लाख रुपए लेने हो तो 3.5 लाख रुपया तुसीं उहदे चों वापस नहीं करना, राइट। जे 50 लाख रुपए लेने तुसीं आपे हिसाब ला लो, मैथ च मैं थोड़ा जिहा कमज़ोर हाँ, राइट। तो 35% सब्सिडी तुहानूं अवेलेबल हैगी है इन रूरल एरिया एंड 25% अवेलेबिलिटी हैगी है इन अर्बन एरिया। तुसीं कोई भी यूनिट लगा सकते हो। यह PMEGP का मोटा मोटा हैगा। मैं तुहानूं स्कीम का दसता, साइट दसती, साइट के उपर जाके तुसीं इहदियां एलिजिबिलिटीज़ या किस तरह अप्लाई करना है वो देख सकते हो। DIC ऑफिस इज देयर इन एवरी सिटी, एवरी डिस्ट्रिक्ट यू कैन से। लुधियाने दे विच साडा ऑफिस ढोलीवाल चौक कोले हैगा, उत्थे भी तुसीं आके हेल्प लै सकते हो। इन एनी डिस्ट्रिक्ट यू कैन गो देयर कि DIC तुहानूं ऑफिस उत्थे अवेलेबल होएगा जित्थों तुसीं लै सकते हो। बट फस्ट ऑफ ऑल मैं ये वास्ते एक तुहाडे च भावना जरूर क्रिएट करके जाऊँगा कि हाँ आपां ये सोचीए कि हाँ असीं एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं छोटी जी एक गल पूछूंगा तुहाडे एरिया दे विच, यू फॉरगेट अबाउट अंबानीज एंड अडानीज एंड एवरी रिच पर्सन। जिहड़ा तुहाडे कोले कोई बंदा हैगा जिहड़ा तुहाडे महल्ले च रहिंदा है या जिहड़ा तुहाडे आस पास कोई जिन्होंने तुसीं जानदे हो, हू इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एरिया, तुसीं जानदे हो कौन हैगा? कोई भी हो सकता, नत्था सिंह जी हो सकते हैं, साधु राम जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वो बंदा की है? वो की अंपलाई है या वो बिजनेसमैन है? बस इन्नी गल दस्सिओ। इज ही एम्प्लॉय और एन एम्प्लॉयर? सो अल्टीमेट टारगेट इज टू बी द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। मैं इत्थे तां कहूँगा स्कोप वड्डा दे दिए तुहानूं, सपने वड्डे देखने चाहिए हैं जिस तरह मैम ने दस्सिया सी। सो बीइंग ए रिचेस्ट पर्सन यू हैव टू हैव बी एन एंटरप्रेन्योर। कोई भी एम्प्लॉय बंदा चाहे वो जिन्ना मर्जी कमा लवे, वो रिचेस्ट नहीं हो सकता इन हिज ओन फील्ड और इन एनी वे। जो थोड़ा जिहा वध कमा लैंदा तो फिर IT वाले आ जाते हैं, उन्होंने को ED वाले आ जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता। पर बिजनेसमैन कैन शो ईच एंड एवरी अमाउंट, ईच एंड एवरी पैनी ऑन द रिकॉर्ड्स एंड ही कैन बी द रिचेस्ट। मैं हुणे गूगल देख रहा सीगा थोड़ी देर पहला जो लैक्चर चल रहे सी, 13,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अज उन्होंने शो की है। ट्राइडेंट वाले रजिंदर गुप्ता जी ने, ही बिलोंग्स टू लुधियाना, बरनाला उन्होंने यूनिट है। 13,800 करोड़ रुपए के नाल ही हैज़ achieved the richest person status in Punjab,
राइट जी। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन रिचेस्ट, सो इन्ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आई थिंक कुंदन लाल जी का कहने तो मैं बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच। Guys, on the top is the rank of the problem, and below, what solution do you propose for that? That's the answer. Okay? English, Hindi, Punjabi, जो प्रॉब्लम को लिखो और उसके सॉल्यूशंस लिखो। ट्रैफिक का इशू है, पोल्यूशन का है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लिखो। एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो सकती है, चाहे वो जॉब के रूप में हो सकती है, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आई एम अ पर्सन हु कैन हेल्प यू टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब्स। आई एम अ पर्सन हु कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट का टेलीग्राम चैनल है जिसके नाम पे DBEE स्पेस लुधियाना। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, इसमें यू विल गेट द गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ ऑल अदर द स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम पंजाब ऑल्सो। पंजाब की गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और दूसरी स्टेट्स की गवर्नमेंट जॉब भी हैं। सिटी यूनिवर्सिटी के साथ हमने पहले भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करे हैं और प्लेसमेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करे हैं, और अगर सारी चीज़ें सही हुई तो नेक्स्ट वीक भी हम एक आपके प्लेसमेंट्स के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें वी आर इन्वाइटिंग वेरी गुड ब्रांड्स एंड कंपनीज। आज का जो टॉपिक है वो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को लेके है। मैंने सभी को सुना, सारे एक्सपर्ट्स को सुना, और मेरा सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी करंट सिचुएशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकती फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। उसका रीज़न है कि आप अपने पेरेंट्स को देखें, अपने फादर को देखें, अपनी कंडीशन को देखें। अगर आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है तो ये आपको देखना है कि आप उसको 2 करोड़ कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है तो भी आपको ये मोटिवेट करती है। और जैसा सर ने बोला, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट पेशेंस और एंथुजियाज़म ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल सेट हो जाते हैं, विज़न सेट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, बट आप ब्रेक होते हो बहुत सारी चीज़ों में, हर रोज़ ब्रेक होते हो। आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ अपने साथ अटैच करनी है जो आपको खुद ब खुद मोटिवेट करे। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सुना है, बड़े सारे इवेंट्स में जाने का मौका मिलता है, उनकी वो मोटिवेशन, उनकी फैमिली, उनकी वो मोटिवेशन, उनकी करंट सिचुएशन होती है जो उन्हें हमेशा मोटिवेट करती रहती है दैट आई हैव टू ग्रो एट अ लेवल कि जहाँ पे मैं और लोगों की हेल्प कर सकूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये लगता है कि आपको कामयाब होना है तो आपको अपने साथ ऐसे लोगों को रखना होगा, दोज आईज लाइट अप व्हेन दे सी यू, जो आपको देखें और खुश हों। और अगर आपको लगता है कि आपको कामयाब होना है तो उसमें हर एक पड़ाव पार करना होगा। माउंटेन जो है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले बहुत बड़ा लगता है, बट एक टाइम पे इट्स अ बॉटम ऑफ अ नेक्स्ट, वो नीचे पहुंच जाता है। आपका पाँव माउंटेन पे होगा, वो किसी टाइम पे वो नीचे होगा। मेरा कहने का मतलब है जो भी आप गोल टारगेट लेंगे एक दिन 100% अचीव होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपका जो अपने आप के साथ बिताया हुआ टाइम है वो बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ अपने आप के साथ बैठें, जैसा सर ने बोला है 2 घंटे आप अपनी हेल्थ को दें। मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ 10 मिनट चाहे आप अपने आप को दें, अपनी इनर सोल को दें, जिनको भी आप बिलीव करते हैं उनको, उनके साथ बैठें। और मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम अलाउ नहीं करता। वी आर द डिपार्टमेंट हु गॉट नंबर 1 अवार्ड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्लेसमेंट्स इन द ईयर 2019. Same award I received in 2021 from the Chief Minister of Punjab, Charanjit Singh Channi ji. We received many awards for our placement activities. But again आपको decide करना है कि आपको goal कौन सा लेना है, और आप अपनी current job के साथ भी कोई ना कोई business start कर सकते हैं. There are many platform, even if you are working on affiliate marketing, बहुत सारी कंपनीज हैं, वेबसाइट है जो एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करती हैं. इवन इन योर स्टूडेंट लाइफ यू कैन अर्न अ लॉट. लाइक आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ अ फाइवर के साथ, अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ आप उनके एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो अगेन आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
Thank you so much. Thank you so much. Thank you for the college for having this event, and thank you, Kundan sir. के बारे में और किस तरह से आप अनएम्प्लॉयड यूथ को हेल्प कर रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट भी करा रहे हैं और उनको एंटरप्राइजेस कर दिया इनका डिपार्टमेंट भी। देखिए एंटरप्राइजेस के बारे में भी ये सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि राकेश पाठक जी ने भी आपको बताया कि जो PMEGP स्कीम है, उस PMEGP स्कीम के लिए आप KVIC ऑनलाइन kvic.gov.in को लॉगिन करेंगे। लेकिन एक मैं आपको साइट बता रहा हूँ जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME की सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी। वो साइट है my.msme.gov.in, my.msme.gov.in। तो फ्रेंड्स, जब उस साइट को आप लॉगिन करेंगे तो ये सारे आइकॉन्स उसमें आपको मिल जाएंगे। और इसमें जैसे कि अभी एक लीगल आइडेंटिटी इंटरप्राइजेस की है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वहीं से ये स्टार्ट होता है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसमें आप जाएंगे तो आपने किसी भी इंटरप्राइजेस को आपने पहले एस्टेब्लिश कर लेना है और एस्टेब्लिश के बाद ही ये रजिस्ट्रेशन होता है। पहले मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि टाइम नहीं अलाउ कर रहा है कि पहले DIC से ही होता था ये रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी ये ऑनलाइन कर दिया गया है। आप अपने एंटरप्राइजेस का ऑनलाइन विद इन 10 मिनट्स यू कैन रजिस्टर योर एंटरप्राइजेस। इसके बाद इसमें बहुत सारे हमारी स्कीम है, समाधान स्कीम है, आइडिया इंक्यूबेशन की हमने बात की थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आइडिया इंक्यूबेशन में जाएंगे तो ये आपको जो इंक्यूबेशन वाली जो हमारी स्कीम है वो आपको डिटेल में आपको मिल जाएगी। अगर किसी की भी कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो आप हमारे यहाँ मेल भी कर सकते हैं, हमें फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज आप आगे देखेंगे इसमें सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे थे PMEGP का भी इसमें है। PMEGP स्कीम है PMEGP.gov.in, इसको भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी PMEGP की। और जैसा कि सर ने बताया कि आप जो पंजाब से हैं उनका ऑफिस DIC में लुधियाना में है, ढोलेवाल चौक के पास, बट आप ऑल ओवर इंडिया से हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है ये स्टेट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जहां अगर आप किसी भी स्टेट से किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर भी आप जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। और अदरवाइज तो आप हमारे ऑफिस में आप कहीं पर भी कांटेक्ट करें, वो भी आपको गाइड करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली माय सिंसियर थैंक्स गोज टू मैडम मनदीप कौर जी, श्री नवदीप सिंह जी, श्री जतेंद्र सिंह जी और श्री राकेश पाठक जी और मैडम अनुपमा जी जो कि इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और VC साहब और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर अति प्रिया जी और मैडम शाहरुख कौशल जी और सर का सॉरी मैं नाम तो मुझे नहीं, लेकिन उनकी पूरी टीम का ही मैं बहुत बहुत अपने डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं कि बच्चों आज से आप अपने माइंड को थोड़ा सा बस ये कि सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, आपके नजारे बदल जाएंगे। First of all, I would like to heartily thank to all the dignitaries for being a part of this event and for sparing their valuable time for this event and enlighten us with so many things that our youth actually needed. I would like to start from Mr. Kundalalji. Thank you so much for sharing the government schemes and the grants and the seed capital concept to our youth, for sharing the deep insight that how they can get the grants, how they can apply, and the different schemes offered by the MSME, which we all need to know. Then I would like to say a very warm thank to Mandeep Kaur. She is really a true professional and an inspiration for all of us.
And there's one common thing between Mandeep ma'am and me is that we both have connection from the place where she got the education. And she is a digital marketing expert. I'm also a digital marketing professor. And I really like to think that she said that we need to understand that what we need to do. First, we need to realize that what we actually want to do. And we need to create the leaders, as she said, that the real leadership is to create more leaders so that they can further create more leaders and we can finally improve the whole world. Plus, she also explained about the life skills that we need and how we can do the business corrections. Then it was again, now I would like to thank to Mr. Jitendra ji. What an amazing session. The way he explained that we need to understand not only about the entrepreneurship, we need to work on self also. Just like the journey he shared with us about the cycling and the record he created in India in the Limca book. And now the next, he already set the target for himself that he want to cover a distance from in Canada itself. So that is a true inspiration for all of us. I was not aware about all those machineries that where actually it was manufactured. But today I got to know that these are the small machineries that we use in day-to-day life, that we have seen that some carpenter is cutting all these things, from where they get it. So these are those people that are actually improving the entire world, that makes the work easy for all of us. So that is a big source of inspiration for us. These kind of entrepreneurs like Mandeep ma'am, Jitendra sir, such a great personalities, and such a big honor for us to have the live session with all these legendary people. And the one thing he said, that we need to do the self-servicing, we need to identify the source. That is absolutely true. That actually touched my heart, that we all are like a blank screen, and this projector actually creates the image on it. So we need to understand the source, and we can, whatever we project, that will be reflected on our screen. We need to work on the self, we need to work on the personal health, as well as on the life skills also. Then I would like to thank Mr. Rakesh for sharing the DIC, for sharing the this website, that kviconline.gov.in. These websites are actually that we need to know about it, because of lack of awareness among the youth, they are not able to get the opportunities. But because of the session from the people like you, we get to know about all these things. Thank you so much, sir. And lastly, I would like to say thank to Navdeep sir for helping all the youth to get employed. For all those people, due to any reason, those who are not able to get their startups, those who are not able to do their businesses, to do all these kind of things. So big thank to Navdeep sir also for providing the employment opportunity to all of us, to our youth, whether it's in private sector or in public sector. This is really commendable. And one thing I would like to say that as the sir said कि हम last के डिब्बे रह गए, हमारे पास space कम है. But वो last के डिब्बे में इतना सारा सामान था, उसके अंदर सारा का सारा जो माल होता है ना बोगी का ट्रेन का, वो लास्ट के डब्बों में छिपा होता है. तो हम सब ने वो सारा माल इकट्ठा कर दिया है, वो लास्ट के डब्बों का भी और स्टार्टिंग का इंजन का भी और सारा का सारा. So thank you so much all the dignitaries for sharing such a valuable point. Now I would like to call our honorable VC sir to please come and say a word of thanks to all of you. We are really humbled and we are really honored to have you all. I'm going to hand over the mic to VC sir, honorable VC sir, please. Really, it is a great day today for the students of City University to learn about entrepreneurship. I'm really grateful, thankful to all the dignitaries who have come all the way from Ludhiana and Amritsar to deliver a talk, face-to-face talk to the students on entrepreneurship. Look, I strongly believe that students who are coming to the university, ultimately they want to settle down in their life.
there are 5 ways we are looking for that how to settle in life. One is those who are looking for a job, corporate job, industry job, like that. Second, they are looking for higher studies. That is another kind of employment we are looking for. After graduation, they are going for higher studies. Then third is entrepreneurship. They are starting their own business. They are not the job seekers, they are the job creators. Fourth is those who are looking for the government jobs like IAS, PCS. Fifth is there are people those who are looking for going abroad. So we are dividing students into these 5 categories, and accordingly we are working on them. For the students that today you have learned a lot about entrepreneurship, I'll say to my all students that apart from teaching, learning process and experiencing, you start thinking. If you will think, you will innovate. If you will innovate, then you will produce certain product. If you will produce certain product, then you will market, and consumer base you will develop. And that is the way that you should become a successful entrepreneur. All the ideas given by all the speakers, you have to keep in mind and to develop entrepreneurship skills in yourself and work accordingly. Thank you once again to all the speakers, those who have come all the way from different places to City University. I am really grateful to all of you. Thank you so much. So now I will like to explain. The next order will be for the Rakesh Pathak. The next will be for the Veer Singh sir. Please repeat. The last honor will be received by the Anupama Rani.